خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرح. خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں؟ میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں. سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں؟ میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں. ہماری پیٹھ میں ہڈی نہیں ہے صرف خنجر ہے. کوئی دھوکہ بھی دیتا ہے تو حیرانی نہیں ہوتی. خنجر ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عہد حاضر کے شاعری کے جو نئے نئے تقاضے ہیں انہیں اگر شاعری کی نٹنگ کے ساتھ آپ کو محسوس کرنا ہے تو آئیے اس شاعر کا انتخاب کر کے اس شاعر کا استقبال کرانا چاہتا ہوں. بنیادی طور پر جس کا تعلق اتراکھنڈ کے ایک ادبی و تہذیبی شہر روڑکی سے ہے، لیکن ان دنوں وہ اپنی شاعرانہ ذمہ داریاں اور اپنے پروفیشن کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ممبئی میں مقیم ہے. فلم انڈسٹری میں ایک کامیاب نغمہ نگار کے طور پر وہ اپنی کاوشوں کے تحت ان دنوں بہت کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہے ہیں. نئی نئی ایلبمز، نئے نئے پروجیکٹس پر کام کرنا یہ ان کے حصے میں آ رہا ہے. لیکن آج اگر اترولہ کے سامعین کو ان کی غزل پر اگر آپ کی دعائیں مل گئیں تو یقین جانیے کہ یہ اپنے سفر کو اور تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، ایسا مجھے یقین ہے. آواز دے رہا ہوں التمش عباس کو جو ہمارے بیچ میں ممبئی سے یہاں تشریف لائے ہیں. زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نوازیں. بہت شکریہ ندیم فروخ صاحب. صدر علی وقار محترم جوہر کانپوری صاحب کی اجازت سے سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں سمیہ رانا صاحبہ کو کہ انہوں نے یاد منور رانا کیا اور آپ لوگوں کے لیے ایک شمع روشن کی یہاں اردو کی. تشریف رکھیے بھائی. حضرات، میں جب یہاں آیا تو مجھے لگا کہ فرشتوں کی محفل ہے، لیکن جیسے جیسے غزل پڑھی گئی ممتاز نسیم کو میں سنتا ہوا آیا تھا تو میں نے ان فرشتوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا تھا تھوڑا تھوڑا. بہرحال جہاں جہاں سے بھی مجھے کچھ شعر یاد آئیں گے، کچھ ہجر ہے، کچھ وصل ہے، کچھ یادیں ہیں، کچھ منقبت کے بھی شعر ہوں گے، کچھ جو ہے وہ کربلائی شعر بھی ہوں گے. جہاں جہاں سے بھی مجھے یہ مختلف شیڈز ہوں گی اور جہاں سے مجھے لگے گا کہ آپ حضرات میرے چھوٹے بھائی بہت پیارے جو بڑے میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ مجھ سے جڑ گئے ہیں. اس اسٹیج کا سب سے ادنا سا چھوٹا سا شاعر ہوں. یہ دامن آپ کے لیے محبتوں سے خالی لایا ہوں، بھر کے بھیجنا آپ کا کام ہے. صرف آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ایک بار تالیاں بجا کے اجازت دیجیے اپنے چھوٹے بھائی کو اور اس کے بعد میں اپنی ٹوٹی پھوٹی شاعری آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں. سنیے گا، اجازت ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں؟ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں؟ اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں؟ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں؟ اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں. بہت شکریہ. اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں؟ کیا کہنا، واہ. تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں؟ اور دیکھیے یہ ہمارے دور کی شاعری ہے، کس طرح سے اردو شاعری کا مزاج بدل رہا ہے. شاعر شاعری بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہا ہے. اسے غزل بناتا ہوں، سنیے گا. اترولہ میں پڑھ رہا ہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنیے گا کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں؟ کیا کہنا. اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے کیا لاؤں؟ کہنا، کیا کہنا. تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں؟ میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں. سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں؟ میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں. سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں؟
तो घर में राशन कहां से लाऊं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। एक मतला और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि इश्क था, अब यहां से जोड़ता हूं, सुनिएगा कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। सुनिएगा, अगला मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए तो नोट कर लीजिएगा और जहां भेजना है वहां भेज दीजिएगा। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। क्या कहना, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज, ये इशारा इधर क्यों किया दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा। नदीम भाई हमारे बड़े अच्छे नाजिम हैं और यकीनन ये हौसला बढ़ाते हैं, हमेशा इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। इतनी मेहनत इस मुशायरे के लिए कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नदीम फर्रुख साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क था, इश्क भला कैसे गवा। मैं ऐसे धीमे धीमे नर्म नाजुक फूल पत्तियों से तरीके से आप तक पहुंच रहा हूं, सुनिएगा। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। क्या कहना, क्या ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। वाह वाह। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। वाह वाह वाह। दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। देखिएगा माहौल को और अपने लोगों की तादाद को समझते हुए एक मतला जो है यहां से और करता हूं, कि लोग इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते। अर्ज कर रहा हूं कि सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। वाह वाह। हजरत हुसैन के हवाले से बहुत शेर पेश किए गए, लेकिन अगर बिल्कुल नया पहलू जो है मैंने नज्म किया हो तो सुनिएगा कि सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। और देखिएगा आलमी मंजरनामे को गजल बना रहा हूं, सुनिएगा। आप जानते हैं करंट अफेयर्स पूरी दुनिया पे निगाह है आपकी। देखिएगा कि सीना पे सर है, लबों पर कलामे बारी है। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। ये सर कटा के भी किसकी नमाज जारी है। इश्क करते हो, खसारों की तरफ मत देखो। इश्क करते हो, खसारों की तरफ मत देखो। दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। इश्क करते हो, खसारों की तरफ मत देखो। दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। और देखिए एक लफ्ज आएगा खत्ते तंसीख। खत्ते तंसीख कहते हैं कि लकीर खींचने को, जंग में लकीर खींचने को खत्ते तंसीख कहते हैं। सुनिएगा कि इश्क करते हो, खसारों की तरफ मत देखो। दो कदम चल के सहारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। खत्ते तंसीख अगर खींचना लाजिम हो तो फिर तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। एक मतला पढ़ता हूं, क्या कहना भाई। वाह वाह। तेग लहरा दो हजारों की तरफ मत देखो। एक मतला पढ़ता हूं कि ना ये करीब हैं दुनिया के और ना दीन के पास। अगला मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा। न ये करीब है दुनिया, न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। न ये अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजा के जरा अपने होने को। बहुत शुक्रिया। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियां, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। शेर सुने कि हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। वो लोग भी हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं।
जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास, जो एक वक्त में होते हैं तीन तीन के पास, न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। वाह, वाह, वाह। ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। और ये शेर भी हाजिर खिदमत है, ये मेरे दोस्त हैं, रहते हैं आस्तीन के पास। वो बेवफा है, वो बेवफा है, मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। एक मतला पढ़ता हूं कि फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। वाह वाह वाह। फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। क्या कहना। एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। वाह वाह वाह। फिर कभी आंसू नहीं आए जहां के सामने। क्या कहना। एक दफा रोया था मैं अल्लाह मियां के सामने। एक मतलब और दो तीन शेर पेश करके अपनी जगह ले लूंगा। इरशाद, कि मोहब्बत के सफर में, देखिए ताजा शेर हैं, आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। सुनिएगा कि मोहब्बत के सफर में इतनी आसानी नहीं होती। मोहब्बत के सफर कि मोहब्बत के सफर में नहीं होती, इतनी आसानी नहीं होती। क्या कहना। कभी जब होठ होते हैं तो पेशानी नहीं होती। वाह वाह वाह। मोहब्बत के सफर में इतनी आसानी नहीं होती। कभी जब होठ होते हैं तो पेशानी नहीं होती। हमारे बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी साहब यहाँ मौजूद हैं और खुर्शीद हैदर साहब, उन लोगों को मुखातिब करता हूं। बिलाल भाई, देखिए तबरेज भाई, कि मोहब्बत के सफर में इतनी आसानी नहीं होती। कभी जब होठ होते हैं तो पेशानी नहीं होती। और मुनाफिक दोस्ती करने में सबसे आगे होता है, इसे सजदा भी करने में परेशानी नहीं होती। मुनाफिक दोस्ती करने में सबसे आगे होता है। मुनाफिक दोस्ती करने में सबसे आगे होता है। ये बहुत अच्छा है यार। वाह वाह। सजदा भी करने में परेशानी। वाह वाह वाह। मुनाफिक, देखिए अगर यहां से दाद आ रही है तो यकीनन बहुत अच्छा शेर है कि मुनाफिक दोस्ती करने में सबसे आगे होता है। मुनाफिक दोस्ती करने में सबसे आगे होता है। इसे सजदा भी करने में परेशानी नहीं होती। इसे सजदा भी करने में परेशानी नहीं होती। और देखिएगा कितनी बारीक चीज को गजल बनाता हूं, सुनिएगा कि इसे सजदा भी करने में परेशानी नहीं होती। हमारी पीठ में हड्डी नहीं है, सिर्फ खंजर है। हमारी पीठ में हड्डी नहीं है, सिर्फ खंजर है। कोई धोखा भी देता है तो हैरानी नहीं होती। खंजर है। हमारी पीठ में हड्डी नहीं है, सिर्फ खंजर है। वाह वाह वाह। हमारी पीठ में हड्डी नहीं है, सिर्फ खंजर है। क्या कहना। क्या हमारी पीठ में हड्डी नहीं है, सिर्फ खंजर है। वाह वाह। अगर आप इसका मजा ले रहे हैं तो एक बार तालियां बजाकर मेरी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अल्तमश ये शेर फिर पढ़ो। माला लेके बिलाल आ रहे हैं, शेर पढ़ो ये दोबारा से। वाह वाह वाह। क्या अच्छा शेर सुना दिया यार तुमने। वाह वाह। बहुत शुक्रिया भाई। और देखिए डाइस पूरी तरह से बेदार है। अलमदारे गजल खुर्शीद हैदर साहब की दाद मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक। मोहब्बत के सफर में इतनी आसानी नहीं होती। कभी जब होठ होते हैं तो पेशानी नहीं होती। अरे वाह वाह। कभी जब होठ होते हैं तो पेशानी नहीं होती। अच्छा। मुनाफिक दोस्ती करने में सबसे आगे होता है। अरे क्या। इसे सजदा भी करने में परेशानी नहीं होती। इसे सजदा भी करने में परेशानी नहीं होती। हमारी पीठ में हड्डी नहीं है, सिर्फ खंजर है। सियासत में काम आएगा आपके। हमारी पीठ में हड्डी नहीं है, सिर्फ खंजर है। कोई धोखा भी देता है तो हैरानी नहीं होती। वाह। कोई धोखा भी देता है तो हैरानी नहीं होती। देखिए नदीम भाई, कोई धोखा भी देता है तो हैरानी नहीं होती। वो शाखें काट दी जाती हैं जिन पर फूल आते हैं। किसी को 5 पेड़ों से परेशानी नहीं होती। वाह वाह वाह।